بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں موٹر وے M2 لاہور تا اسلام آباد دھند کے باعث بند کر دی گئی. شہری دن کے اوقات میں سفر کو ترجیح دے. ترجمان موٹر وے پولیس کی جانب سے یہ ہدایت جاری کی گئی ہے. دھند میں صبح 10 تا شام 6 تک محفوظ سفری اوقات ہیں. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ابراہیم شیخ سے. جی ابراہیم بتائیے گا. بالکل اگر بات کر لیں تو اس وقت میں موجود ہوں M2 موٹر وے بابو صابو انٹرچینج پہ. اگر بات کر لی جائے M2 موٹر وے کی تو لاہور سے اسلام آباد موٹر وے جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قومی شاہراہ اور دیگر موٹر ویز کو بھی دھند کی وجہ سے جو ہے وہ بند کر دیا گیا. کون کون سے مقامات اس وقت دھند کے سبب جو ہے وہ بند ہیں تو اگر ہم بات کر لیں سب سے پہلے M2 M3 کو فیض پور سے رجانہ تک جو ہے وہ دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ موٹر وے M4 کو گوجرا سے ملتان تک دھند کی وجہ سے جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ موٹر وے M5 ملتان سے ظاہر پیر تک دھند کی وجہ سے جو ہے وہ بند ہو گئی ہے. یہ کہنا ہے ترجمان سید عمران احمد کا. اگر بات کر لیں مزید کہ موٹر وے کی بندش کی وجہ جو ہے وہ اس وقت کیا ہے تو موٹر وے کی بندش کا مقصد جو ہے وہ صرف عوام کو مالی اور جانی طور پر تحفظ فراہم کرنا ہے موٹر وے پولیس کی جانب سے. یہ کہنا ہے موٹر وے ترجمان کا. ان کا کہنا ہے یہ قومی شاہراہ پر مانگا منڈی پتوں کی اکاڑا اور ساہیوال میں دھند اس وقت کافی شدید ہے. یہ وہ تمام تر مقامات ہیں جہاں پر دھند کا اس وقت کافی زیادہ راج ہے, جہاں پر حد نگاہ کافی حد تک جو ہے وہ کم ہو چکی ہے, جس میں قومی شاہراہ پر کسوال, اقبال نگر, چیچاوتنی اور میاں چنو پر اس وقت دھند کا راج ہے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ خانے. جی ابراہیم قریشی بہت شکریہ آپ کا. دوسری جانب میونسپل کارپوریشن 10 لاکھ آبادی والے شہر میں بنے گی. ٹاؤن کارپوریشن کی آبادی 5 سے 9 لاکھ ہوگی. یونین کونسل 20 سے 30 ہزار آبادی پر مشتمل ہوگی. آبادی کا تعین صوبائی حکومت نوٹیفیکیشن کے ذریعے کرے گی. بلدیاتی اداروں کی درجہ بندی آبادی کی بنیاد پر ہوگی. بلدیاتی اداروں کے قیام کا فریم ورک تیار کر لیا گیا. میونسپل کارپوریشن 10 لاکھ آبادی والے شہر میں بنے گی. ٹاؤن کارپوریشن درمیانے درجے کے شہری علاقوں میں قائم ہوگی. ٹاؤن کارپوریشن کی آبادی 5 سے 9 لاکھ کے درمیان ہوگی. میونسپل کمیٹی ان شہری علاقوں میں قائم کی جائے گی جہاں آبادی 1 لاکھ یا زائد ہو. بلدیاتی اداروں کی درجہ بندی آبادی کی بنیاد پر ہوگی. بلدیاتی اداروں کے قیام کا فریم ورک تیار کر لیا گیا. 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ آبادی والا قصبہ میونسپل کمیٹی کے دائرہ کار میں آئے گا. یونین کاؤنسل شہری اور دیہی علاقوں میں بنیادی بلدیاتی ادارہ ہوگی. یونین کاؤنسل 20 سے 30 ہزار آبادی پر مشتمل ہوگی. ہر بلدیاتی ادارے کی حتمی حدود اور آبادی کا تعین صوبائی حکومت نوٹیفیکیشن کے ذریعے کرے گی. پنجاب میں حد بندی مکمل ہونے پر بلدیاتی اداروں کی تعداد 229 سے بڑھ کر 454 ہو جائے گی. پرانا پتنگ بازی قانون ختم, نیا سخت قانون نافذ ہو گیا. پتنگ بازی اجازت سے مخصوص علاقوں میں ہو سکے گی. کیمیکل, نائلون اور دھاتی ڈور پر مکمل پابندی ہوگی. غیر قانونی مانجا استعمال کرنے پر 5 سے 7 سال قید اور بھاری جرمانہ ہوگا. پنجاب کابینہ نے پتنگ بازی کے قانون کی منظوری دے دی. سرکاری محکموں میں زیرو کرپشن کا ٹارگٹ. 3 ماہ میں کرپشن صفر نہ ہونے پر جواب دہی ہوگی. زیبرا کراسنگ کے ذریعے سڑکیں محفوظ بنائی جائیں گی. وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے. پرانا پتنگ بازی کا قانون ختم, نیا سخت قانون نافذ العمل. موٹر سائیکل سواروں کے لیے حفاظتی اقدامات کا فیصلہ کر لیا گیا. بغیر اجازت پتنگ بازی جرم قرار. پتنگ بازی اجازت سے مخصوص علاقوں میں ہو سکے گی. کیمیکل, نائلون اور دھاتی ڈور پر مکمل پابندی ہوگی. غیر قانونی مانجا استعمال کرنے پر 5 سے 7 سال قید اور بھاری جرمانہ عائد ہو سکے گا. پتنگ اور ڈور بنانے اور بیچنے والوں کی رجسٹریشن کو لازمی قرار دیا گیا. پولیس کو بغیر وارنٹ گرفتاری اور سامان ضبط کرنے کے اختیارات مل گئے. پنجاب کابینہ نے پتنگ بازی کے قانون کی باقاعدہ منظوری دے دی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں تعلیم, ٹیکنالوجی, صحت, انفراسٹرکچر, نوجوانوں کی ترقی, عوامی سہولت کے لیے بھی بڑے فیصلے کیے گئے. پنجاب حکومت نے محکموں میں ہونے والی کرپشن اور کرپٹ عناصر کے گرد گھیرا سخت کر دیا. 3 ماہ میں ہر محکمے کی مکمل انکوائری ہوگی. کرپشن صفر ہوگی اور جواب دہی یقینی بنائی جائے گی. پنجاب کابینہ نے جدید ٹریفک لائٹ سے لاہور میں ٹریفک کا نظام بدلنے کی منظوری دے دی. غیر قانونی لائٹس روکنے کے لیے وارڈن کو 1 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا. پنجاب میں زیبرا کراسنگ کے ذریعے سڑکیں محفوظ بنائی جائیں گی. پہلی خود مختار امتحانی اتھارٹی قائم کی جائے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہیڈ ٹیچر کے لیے الاؤنس 5,000 سے بڑھا کر 10,000 کر دیا. اجلاس میں امام مسجد کو اعزازیہ دینے کی پالیسی منظور کر لی گئی. ترقی کی راہ ہموار کرنے کے لیے 1 سال میں 2,300 نوجوانوں کو سکل پروفیشنلز بنانے کا ہدف مقرر کیا گیا.
वजीर आला पंजाब ने कहा, सरकारी खजाना आवाम की अमानत है, किसी करप्शन का बोझ नहीं उठा सकती। फंड्स के इस्तेमाल पर हम सब अल्लाह ताला को जवाबदेह हैं। इजलास में DGPH लाहौर राजा मंसूर और पूरी टीम को कारकर्दगी पर शाबाश दी गई। और यहाँ आपको बताएं कि शहर की 6 नई सड़कें कमर्शियल करने में पेशरफ्त। सब्जाजार लियाकत चौक ता मुल्तान रोड, कॉलेज रोड गाजी चौक ता UET गोल चक्कर तक सड़क शामिल। डिफेंस रोड भूभतिया चौक ता कहना, GT रोड कायद आजम इंटरचेंज ता BRB कैनाल भी शामिल। उधर दूसरी जानिब हुकूमत ने कमाहा रोड की तकमील के लिए 120 दिन का टाइम फ्रेम दे दिया। LDA ने बरवक्त तकमील के लिए पंजाब हुकूमत से 1 अरब से ज़ायद के फंड्स तलब कर लिए। LDA का शहर की मजीद 6 रोड्स को कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए खोलने के फैसले में पेशरफ्त हो गई। सब्जाजार लियाकत चौक ता मुल्तान रोड, कॉलेज रोड गाजी चौक ता UET गोल चक्कर तक सड़क शामिल है। डिफेंस रोड भूबत्तियां चौक ता कहना, GT रोड कायदे आजम इंटरचेंज ता BRB कैनाल तक कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए खोली जाएगी। LOS फिरोजपुर रोड ता मुल्तान रोड, बरकी रोड रिंग रोड ता BRB कैनाल रोड तक शामिल है। LDA ने अवामी शिनवाई समेत तमाम कानूनी तकाजे पूरे कर लिए। मुजव्विजा कमर्शियल रोड्स पर इससे कबल सैकड़ों गैर कानूनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। LDA सड़कों को कमर्शियल के लिए खोलने के लिए गवर्निंग बॉडी से हतमी मंजूरी लेगा। दूसरी जानिब हुकूमत ने कमाहा रोड की तकमील के लिए 120 दिन का टाइम फ्रेम दे दिया। LDA ने बरवक्त तकमील के लिए पंजाब हुकूमत से 1 अरब से जायद के फंड्स मांग लिए। LDA कमाहा लुधड़ रोड, आजम चौक ता राना चौक अहम शाहराह की असर नौ तामीर कर रही है। मरासला में लिखा गया है कि मंसूबे पर काम को 120 दिन में मुकम्मल करने के लिए पूरी फंडिंग दरकार है। वासा ने कमाहा लुधड़ रोड पर अपना काम मुकम्मल करके सीवरेज डाल दिया है। मंसूबे को हुकूमत की मंशा के मुताबिक मुकम्मल करने के लिए तमाम फंड्स का इजरा नागुज़ीर हो चुका है। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरामीम के बाद ट्रैफिक मामलात बेहतर होना शुरू हो गए। लाहौर समेत पंजाब भर में चालानों में कमी आ गई, हादसात में कमी, लाइसेंसिंग में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ। ट्रैफिक पुलिस ने 27 नवंबर से अब तक 10 लाख से जायद चालान किए। चालान के जुर्मानों और लाइसेंसिंग की फीस की मद में 4 अरब से जायद की वसूलियां की गई। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरामीम के बाद समरात आना शुरू। ट्रैफिक पुलिस के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ्ते में चालान की रोजाना तादाद 60,000 से कम होकर 35,000 पर आ गई। हादिसात में 40% कमी हुई। 29 शहरों में एक भी जानलेवा हादिसा रिपोर्ट नहीं हुआ। लाहौर समेत पंजाब भर में 20 लाख लाइसेंस का इजरा किया जा चुका। वन वे की खिलाफ वर्जियों में कमी वाक़ हुई। हेलमेट के इस्तेमाल में इजाफा, कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग और गैर महफूज गाड़ियों के इस्तेमाल में वाज़े कमी हुई है। अब रिलेटिवली ज्यादा जो कह लें कि कानून की पाबंदी हो रही है, जिसकी वजह से कोई तकरीबन 40% कम हो गए हैं चालान, और ओवरऑल 1 मिलियन से ज्यादा जो है हम चालान कर चुके हैं पिछले 14 दिन में, और उससे तकरीबन कोई 2 अरब रुपए के करीब जो है वो फाइन गवर्नमेंट के खजाने में जमा कराया जा चुका है। इसी तरह एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि लोग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चला रहे थे, तो लाइसेंसिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। पिछले कुछ अरसे में तकरीबन 1 मिलियन से ज़ायद 1.2 मिलियन लोगों ने लाइसेंस बनवाए हैं, रीन्यू करवाए हैं। पॉइंट सिस्टम मुतवक्के तौर पर इसी महीने से शुरू कर दिया जाएगा। 20 पॉइंट्स पूरे होने पर लाइसेंस 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिया जाएगा। 16 साल से 18 साल के बच्चों के लाइसेंसिंग की समरी मंजूरी के लिए काबीना में है। मंजूरी के बाद इजरा शुरू कर दिया जाएगा। अली साही, सिटी 42। और यहाँ आपको बताएं कि मौसमी फ्लू बढ़ने का खदशा। महकमा सेहत ने अभी तक फ्लू वैक्सीन ही ना खरीदी। अफसरशाही फ्लू वैक्सीन खरीदने से गाफिल रही। अस्पतालों को फ्लू के मरीजों का डाटा रोजाना डैशबोर्ड पर अपलोड करने की हिदायत जारी। रवां साल मौसमी फ्लू के दुनिया भर में केसेस में माजी की निस्बत इजाफा। शहर में मौसमी फ्लू बढ़ने के खदशे के पेश नजर हेल्थ एडवाइजरी भी जारी हो गई, लेकिन महकमा सेहत गफलत की नींद से बेदार न हुआ। महकमा हेल्थ ने रवां साल फ्लू वैक्सीन ही ना खरीदी। महकमा सेहत हर साल डॉक्टर्स, तिब्बी अमला और बीमारों के लिए फ्लू वैक्सीन खरीदता है। अस्पतालों को फ्लू के मरीजों का डाटा रोजाना डैशबोर्ड पर अपलोड करने की हिदायत की गई है। वाज़ेह रहे कि रवां साल मौसमी फ्लू के दुनिया भर में केसेस में माजी की निस्बत इजाफा हुआ है। अब यहाँ पर आपको बताएं, बागों का शहर आलूदगी के शिकंजे से ना निकल सका। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। शरह 497 रिकॉर्ड की गई। सिविल सेक्रेटेरिएट में शरह 786 रिकॉर्ड की गई है। शहरियों को सांस लेने में भी मुश्किलात का सामना है। माहिरीन की मास्क लगाने की हिदायत। शहर का दर्जा हरारत 15 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि बारिश का कोई इम्कान नहीं है।
باغों के शहर से आलूदगी के बादल छटे नहीं। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहले नंबर पर रहा। शहर में आलूदगी की मजमूई शरह 487 रिकॉर्ड की गई। मुख्तलिफ इलाकों में शरह 700 से भी ज्यादा रिकॉर्ड की गई। सिविल सेक्रेटेरिएट में सबसे ज्यादा आलूदगी शरह 786 रिकॉर्ड की गई। जोहर टाउन 636 शरह रिकॉर्ड की गई। गुलबर्ग 2 489, बरकी रोड 469, बेदिया रोड 392 AQI रिकॉर्ड किया गया। DHA फेज 5 334, इकबाल टाउन असली 10 207 आलूदगी की शरह रही। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब में हाई सिक्योरिटी जोन्स बनाने का बड़ा मंसूबा, नया कानून तैयार कर लिया गया। हाई सिक्योरिटी जोन में जल्द से जुलूस और एहतजाज पर मुकम्मल पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर 1 से 3 साल कैद और 5 लाख तक जुर्माना होगा। नामजद इलाकों में इज्तिमा सिर्फ डिप्टी कमिश्नर की इजाजत से होगा। अवामी इज्तिमा से मुतल्लिक जराइम नाकाबिल जमानत करार। हाई सिक्योरिटी जोन्स में जल्द से जुलूस और एहतजाज पर मुकम्मल पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर 1 से 3 साल कैद और 5 लाख तक जुर्माना होगा। नामजद इलाकों में इज्तिमा सिर्फ डिप्टी कमिश्नर की इजाजत से होगा। अवामी इज्तिमा से मुतल्लिक जराइम को नाकाबिल जमानत करार दिया गया है। पंजाब में हाई सिक्योरिटी जोन्स बनाने का कानून तैयार कर लिया गया। बगैर इजाजत इज्तिमा पर 1 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। नॉन डेजिग्नेटेड इलाकों में इज्तिमा पर 6 माह से 1 साल कैद होगी। नॉन डेजिग्नेटेड इलाकों में 3 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। इज्तिमा में सरकारी या प्राइवेट इमला को नुकसान पर इजाफी जुर्माना नाफिज होगा। नुकसान के बराबर रकम बतौर जुर्माना वसूल की जाएगी। पुलिस को खिलाफवर्जी पर इस्तेमाल होने वाला सामान जब्त करने का इख्तियार होगा। दूसरी जानिब अमेरिका से मफरूर मुजरिमान की निशानदही और गिरफ्तारी के लिए मालूमात फराहम की जाएंगी। पंजाब हुकूमत ने पाकिस्तान और अमेरिका के सिक्योरिटी ताउन के मुआहदे की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे वजारत दाखिला के साथ हर तरह से ताउन करेगी। पंजाब पुलिस और महकमा इंसदाद दहशत गर्दी मुश्तरका कार्रवाइयाँ करेंगे। जाली शिनाख्त, इंसानी स्मगलिंग और संगीन जराइम के मुकदमात में ताउन होगा। पंजाब में छुपे मतलूब और मफरूर अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। बैनुल अक़वामी जराइम के खिलाफ पाकिस्तान और अमेरिका का मुश्तरका हिफाजती इक़दाम होगा। पाकिस्तान में स्पेशल टास्क फोर्स भी कायम होगी ताकि कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान राबता कारी और कार्रवाई को मुअस्सर बनाया जा सके। किताबों की जगह बच्चों को क्रोम बुक्स दी जाएंगी। मरहलावार स्कूलों में क्रोम बुक देने का प्रोग्राम। तालीमी निज़ाम को जदीद सांचे में डालने की तजवीज़। मंसूबे से किताबों की अशात पर करोड़ों की बचत होगी। सोशो इकोनॉमिक सर्वे करने वाले उस्ताज़ा की मौजें। छुट्टी वाले दिन सर्वे करने पर 4000 मुआवजा मिलेगा। पब्लिक हॉलीडे और इतवार की छुट्टी पर सर्वे करने पर भी मुआवजा दिया जाएगा। पंजाब भर के 9 तालीमी बोर्ड के कवायद और ज़वाबित में तरमीम का फैसला कर लिया गया। तमाम तालीमी बोर्ड्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस यूनिफाइड होंगे। रूल्स और रेगुलेशंस में फर्क होने की वजह से सर्टिफिकेट होल्डर्स को मुश्किलात का सामना है। बेशतर तालीमी बोर्ड में 10 साल बाद असनाद पर नाम और उम्र की तारीख में तब्दीली नहीं करवाई जा सकती। लाहौर तालीमी बोर्ड में असनाद में नाम और उम्र में गलती दुरुस्त करवाने के लिए वक्त की कोई कैद नहीं। महकमा हायर एजुकेशन ने एक्ट में तब्दीली के लिए काम शुरू कर दिया है। पंजाब में तालीमी निजाम को जदीद सांचे में ढालने की तजवीज दी गई है। किताबें खत्म करके बच्चों को क्रोम बुक्स दी जाएंगी। मंसूबे के लिए पंजाब बैंक ने कर्ज देने की तजवीज पेश कर दी। मंसूबे से किताबों की अशात पर करोड़ों रुपए की बचत होगी। दूसरी जानिब सोशो इकोनॉमिक सर्वे करने वाले हजारों असातिज़ा को छुट्टी वाले दिन सर्वे करने पर 4000 रुपए मुआवजा मिलेगा। पब्लिक हॉलीडे और इतवार की छुट्टी पर सर्वे करने पर मुआवजा दिया जाएगा। सर्वे करने वाले असातिज़ा की जानिब से मुआवजों की अदम अदायगी की शिकायत मौसूल हुई थी। असातिज़ा यूनियन ने मुआवजों की अदायगी के फैसले को खुशाइंद करार दिया है। बिजली सिंगल फेस कनेक्शन के लिए अखराजात में होशरुबा इजाफा। AMI सिंगल फेस कनेक्शन के अखराजात 30,000 तक पहुँच गए। मार्केट में सिंगल फेस मीटर की कीमत 15 से 23,000 तक रिकॉर्ड की गई। सिक्योरिटी और इंस्टॉलेशन चार्जेस कीमत में सार्फिन को 4 से 5,000 अदा करना होंगे। लेस्को में AMI स्मार्ट मीटर की बुनियाद पर कनेक्शन लगवाने के अखराजात में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। सिक्योरिटी, इंस्टॉलेशन चार्जेस के डिमांड नोटिस और मार्केट से मीटर की खरीदारी करके कनेक्शन की तनसीब 30,000 रुपए तक पहुंच गई। मार्केट में सिंगल फेस मीटर की कीमत 15 से 30,000 रुपए तक रिकॉर्ड होने लगी है। जराये ने बताया है कि सिक्योरिटी और इंस्टॉलेशन चार्जेस की मद में सार्फिन को 4 से 5,000 रुपए अदा करना होंगे। जबकि शहर के बाज हाउसिंग सोसाइटीज में ग्रिड शेयरिंग का डिमांड नोटिस भी जमा करवाना होगा। इसी तरह सिक्योरिटी के डिमांड नोटिस की अदायगी और NOC क्लियरेंस पर कनेक्शन लगाया जाएगा। लेस्को ने सार्फिन को AMI स्मार्ट मीटर की बुनियाद पर NOC जारी किए हैं। सार्फिन NOC की बुनियाद पर मीटर खरीद कर दस्तावेजात लाइन सुपरिटेंडेंट को जमा करवाएंगे। लाइन सुपरिटेंडेंट मुतलका कंपनी से मीटर लेकर सार्फिन के कनेक्शन की तनसीब करेगा।
2.5 माह से रोड बंद होने पर स्कीम मोड़ ताजर बोर्ड मुल्तान रोड का एहतजाज। कहते हैं रोड की बंदिश से हमारे कारोबार तबाह हो चुके हैं, फौरी तौर पर रोड को खुलवाया जाए। मुजाहरे का मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। 2.5 माह से स्कीम मोड़ रोड बंद होने पर ताजर बोर्ड मुल्तान रोड की जानिब से एहतजाज किया गया। चेयरमैन ताजर बोर्ड मुल्तान रोड डॉक्टर सलीम ने एहतजाज की क़यादत की। कहते हैं हमारा मुतालबा है कि रोड को खोल दे ताकि ग्राहक हमारी दुकानों तक पहुंच सके। 2.5 माह से हमारा कारोबार बंद पड़ा है। जब एहतजाज होते हैं तो ट्रैफिक ब्लॉक की जाती है, जब एहतजाज होते हैं तो संगबारी होती है। हम तो इसका उलट कर रहे हैं, हम तो रास्ते खोलने का मुतालबा कर रहे हैं। हम एंटी एहतजाज हैं, हम रोजगार के हक में हैं, हम कारोबार के हक में हैं, हम अमन व अमान के हक में हैं। मुजाहिरीन ने अपील की है कि इनके कारोबार बंद ना किए जाएं, बल्कि इनके रोजगार को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हम ये चाह रहे हैं कि कारोबारी सरगर्मी चलती रहे। हमारी अपील ये है कि सड़क को खोल दीजिए। हम अमन व अमान में की कोशिशों में गवर्नमेंट के साथ हैं और कारोबार को बहाल होना चाहिए। सड़क खुलेगी तो कारोबार चलेंगे। तकरीबन 2.5 माह से हमारा रोड बंद है और हम बहुत ज़्यादा मुतासर हैं। दुकानें हमारी किराए पे हैं, किराया भी नहीं निकल रहा है और दूसरे अखराजात तो अलग हैं, लेकिन मेन चीज़ हमारा किराया नहीं निकल पा रहा है। तो गवर्नमेंट से अपील है कि हमारी रोड को खोला जाए। रोड की बंदिश की वजह से 50 से जायद कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। वो बताएं, गवर्नर पंजाब से फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी के वफ्द की मुलाकात। वफ्द की क़यादत वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल कर रहे थे। वफ्द में यूनिवर्सिटी के डीन्स कमेटी, बरतानिया और अमेरिका से एलुमनाई के नुमाइंदे शामिल थे। मुलाकात में शोबा तिब में जदीद रुझानात, मेंटल हेल्थ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर गुफ्तगू की गई। गवर्नर पंजाब ने वाइस चांसलर खालिद मसूद गोंदल को यूनिवर्सिटी से मुल्हिका सर गंगाराम अस्पताल में मरीजों की खिदमत जारी रखने की हिदायत की। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि तिब मसीहाई का शोबा है जिससे दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि गरीब और मुस्तहिक मरीजों को इलाज मुआवजे की सहूलियात पर खुसूसी तवज्जो दें। मुलाकात में अमरीका से एलुमनाई की नुमाइंदगी डॉक्टर फौजिया राना, डॉक्टर आमना बुटर और बरतानिया से डॉक्टर वरदा शफीक ने की। प्रोफेसर मुनज़ा इकबाल, प्रिंसिपल प्रोफेसर अब्दुल हमीद, डीन अंडर ग्रेजुएट प्रोफेसर बिल्कीस शबीर, रजिस्ट्रार प्रोफेसर मोहम्मद नदीम, प्रोफेसर तस्कीन जहरा वफ़द में शामिल थीं। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफिर हुसैन के ज़ेर सदारत इजलास वीमेन बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर लाहौर की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। लाहौर के बाद पंजाब के दीगर 6 शहरों में वीमेन बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स के क़याम का फैसला किया गया है। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफिर हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। पैसिफिक हाउस डेविस रोड पर मुनक्किदा इजलास में वीमेन बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर लाहौर की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। MD पैसिक सारा उमर ने तफसीली ब्रीफिंग दी। लाहौर के बाद पंजाब के दीगर 6 शहरों में वुमेन बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स के क़याम का फैसला किया गया। पहले मरहले में मुल्तान, लैया और गुजरात में वुमेन बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर बनेंगे। दूसरे मरहले में साहिवाल, फैसलाबाद और रावलपिंडी में वुमेन बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाएंगे। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफिर हुसैन ने कहा कि वुमेन बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर लाहौर ख़वातीन सरमायाकारों की स्किल्स बढ़ाने के लिए कलीदी किरदार अदा कर रहा है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।